Hello everyone. So welcome to another episode. So today's basically Akshay with us. So he just passed CAPS exam with academically, and Akshay is basically from Haryana, and he's a BPharm graduate. So we will see, in his journey, he's basically a retail pharmacist. So as you know, if you are working in retail pharmacy in India, a lot of struggles basically is there. Salary is very very low. And even you cannot basically survive in a big city. He passed the exam. He's working full time in a pharmacy, and how he manage his time to pass the exam, all those things. So first of all, congratulations, Akshay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, how are you feeling after passing the exam? I'm feeling good, sir. My hard work and I'm dedicated about that CAPS. Okay, Yes, sir. Your full support to me on that. First, if you can just give us your brief introduction, your education, you're from which place, or how you studied and all those things, your work experience, what you're doing currently. Myself, Akshay. I am from Hisar, Haryana. I have passed my graduation from Guru Jumbeshwar University, Hisar. Okay. I have a 3-year experience in retail field. So you are working from beginning in retail pharmacy only? Yes, sir. Hospital pharmacy and retail pharmacy, yes. Why you choose? Because in India, maximum students choose to go in industrial pharmacy, or they become a MR because they are getting high salary, especially in the MR. Why you choose to become a pharmacist in retail pharmacy? Because the salary is very low in this field, right? Yes, sir. Salary below low, but I am touching with the medicine. In the industries, knowledge are limited, but in pharmacy, you touch with all the medicines, with doctors and colleagues, pharmacists. Basically, if you are become a pharmacist, to become your role only to need to work in hospital retail pharmacy only. Industrial pharmacy, anyone can work. Even BA, BSc, also guys, you can find a lot of people are working in industry. Yeah, sir. Right? The hospital hospital pharmacy, they need license. Registered pharmacist only can work legally, whether it is India or anywhere in the world. Right, Akshay? Yes, sir. You're right. Akshay, are you currently working full time? So how you manage your time? How many hours you study, basically? Sir, the retail jobs, you know very well, this hectic job, and in the sale targets, I will manage my study with their job. In the morning, I wake up in early 5 o'clock. And 2 hours study morning. And then I complete my job in the evening. I will study in 4 hours evening. Yes. So Akshay, how many hours your job basically you do? Like it's like 10 hours? Sir, 9 hours? 9 hours, sir. My job 9 hours. 9 hours. Yes. Okay. So on an average, I can say you are working, studying per day 2 to 4 hours. Yes, sir. I will study in totally in 6 hours totally, sir, in a day. 6 hours per day. So you study from beginning the 6 hours or beginning? No. In the end, last 2 months, I study 8 hours. In the starting, I studied 4 hours daily, sir. Basically, you start studying maybe 3-4 hours, then you increase for 5-6 hours, at like 8 hours you increase hours. Okay, that's good. So Akshay, why you want to work in abroad? You're already working in retail pharmacy. So what is your motivation to work in abroad, or how you know about the CAPS exam? सर मुझे ना मतलब खुद को ना एलिब्रेट करना था कि मैं कहाँ कर रहा हूँ, कि मतलब क्या चल रहा है, क्योंकि मैं सर 3 साल अपने दे चुका हूँ जॉब को. क्योंकि सर एक वो होता है ना कि सर एक लेवल के बाद हमें एक पोजीशन पे आ जाना चाहिए, कि एक सैलरी का भी होता है सर, कि हाँ अब थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि हमारी जॉब में, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई सर मेरे को यहाँ. तो मैंने सोचा सर अगर हार्ड वर्क ही करना है सर, ऐसी जगह तो करो जहाँ आपकी वैल्यू हो. यस, एग्जैक्टली. यस सर. तो बेसिकली अगर आपको वैल्यू चाहिए अपने जो डिग्री किया आपने फार्मेसी का, तो आपको ऐसी जगह पे एफर्ट करना चाहिए ताकि वहाँ आपकी वैल्यू. इंडिया में कोई वैल्यू नहीं, कोई भी कोई भी 10 पास फार्मेसी खोल लेता है अपने वहाँ. जॉब करने वाले विदाउट फार्मासिस्ट भी होते थे, असिस्टेंट होते थे. तो वही सर उसमें ना एक लग नहीं रहा था कि मतलब एक मैं फार्मासिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, और सेम वैल्यू सर. सेम वैल्यू. यस सर. Okay, so Akshay, how you know about this CAPS? Why you choose Australia? How you know about this? I know about that, sir, about from internet.
I know you. See your videos in YouTube, so I Okay. contact from academically. Okay. Sir, I have starting in financial problem, very big problems financial. I have not money for that. Yes, sir. I mean, this is the main things, Yes, sir. in India. This is Yes. why any mediocre जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कोई मीडियोकर फैमिली से बंदा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बंदा है, Sir. उसको अगर आगे बढ़ना है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? इंडिया में 15-20 हजार की नौकरी में तो आगे बढ़ नहीं सकता। नहीं हो ठीक है? सकता, not possible. तो इसीलिए आपको ये एग्जाम पास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ, आपकी एंटायर फैमिली की लाइफ चेंज कर सकता है ये एग्जाम पास करना, है ना? Yes. क्यों अक्षय? यस सर, ये मतलब एग्जाम आप क्लियर करते हो तो आपकी ना टोटल लाइफ चेंज हो जाती है, आपके परिवार की, कि आप एक ऐसे लेवल पर चले जाते हो जहां आप एक ये फील करोगे कि आप अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाए हो इस लाइफ में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सर रहेगी, अगर मैं इंडिया में करता रहा तो सर मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम टोटली वो लाइफ टाइम रहेगी, वो लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि जो पैसे बढ़ेंगे ना वो उसकी इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो हार्डवर्क ज्यादा है के टाइम में। फार्मासिस्ट बढ़ते जा रहे हैं सर इंडिया में, मतलब आप अगर जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी अगर आप कोई कम सैलरी में रख लेंगे दूसरे को। ये सेम बात है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात। यस सर, 6000 फार्मेसी कॉलेज इंडिया में ओपन कर दिए गए, इतना डिमांड है नहीं वहाँ पर फार्मासिस्ट का, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे वहाँ पर। बट ये बात नहीं है, फार्मेसी का बहुत ही अच्छा स्कोप है विदेश में। ऑस्ट्रेलिया आइए आप लोग, टेक्निकली हेल्प यू गाइस। तो अच्छा अक्षय, ये बताइए एट द एंड के लोग बोलते हैं कि बहुत ही टफ एग्जाम है ये, तो आपके ओपिनियन में आपने इतनी प्रिपरेशन की, आपको क्या लगता है, मतलब ये एग्जाम बहुत टफ है या मीडियोकर एग्जाम है, एनीवन कैन डू? आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, अगर आपकी एक डेडिकेशन आपके अंदर, मुझे करना ही है, और आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, और आपने मतलब कोई भी ये नहीं कि मुझे आज नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, मतलब वो करना ही पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि मतलब विदाउट आप डायरेक्ट एग्जाम दे रहे हो जाओ क्लियर, ऐसा नहीं है सर। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए सर, मतलब विदाउट टीचर, विदाउट कोचिंग ऐसा पॉसिबल ही नहीं है सर कि आप क्लियर कर पाओ, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है सर, वो ट्रिकी क्वेश्चन आपको विदाउट कोचिंग नहीं मिल पाएगा सर। लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको गाइड करे, इट इज नॉट जस्ट द एग्जाम पास, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपको बताना इन ए राइट वे, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक राइट मेंटोर हो, तो आपकी जो नैया है ना वो पूरी पार करा दे यहाँ तक आने तक। ठीक है, विदाउट मेंटर नॉट पॉसिबल सर। यस, थैंक यू अक्षय। तो अक्षय ये बताओ, एट द एंड जो लोग हम लोग को देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं वीडियोस, और स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले, यूपी, हरियाणा, पंजाब, लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम देंगे, दे नहीं रहे, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो एग्जाम उनको देना चाहिए? सर, अगर उनका ना टारगेट कुछ अचीव करने का सर, कुछ हायर पोजीशन पे जाने का है, या फिर कुछ लाइफ में कुछ करना ही है, तो उनको एग्जाम देना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि सर यहाँ जो लाइफ जी रहे हो, मैं जी रहा हूँ, मुझे पता है सर, तो अगर उनको कुछ चाहिए कुछ, तो सर करना पड़ेगा। और विदाउट मेंटर, क्योंकि एकेडमिकली मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद मुझे फील ऑटोमेटिक होने लगा कि हाँ हो जाएगा। ऐसी कोचिंग और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हो जाएगा कि ना। अक्षय, इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट थे, तो मॉक टेस्ट को आपने कितना अटेंड किया, आपने क्या स्कोर आ रहा था आपका, कैसे उन्होंने आपको हेल्प किया? बहुत ज्यादा हेल्प की सर, मॉक टेस्ट के बिना तो वो नॉट पॉसिबल सर एग्जाम क्लियर करना। और मैं बहुत मेहनत की है सर, मैंने 10 टाइम्स रिपीट किए सर हर मॉक को सर। तो आज नतीजा है कि आप यहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं, राइट? ये बेसिकली अब मैं बोलूंगा कि आपका जो 70% जो आपका हर्डल थे वो हो चुका है, बिकॉज कैप्स को मेन होता है कैप्स को पास करना। अभी ये बस इंग्लिश रह जाएगा, फिर यहाँ वो धीरे धीरे टाइम के साथ में वो सब चीजें हो जाएंगी। तो बात यही ना बोलते कि अगर आपने स्टेप ही नहीं लिया तो भाई आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने स्टेप लिया, आपने अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले रहे हो तो यू नॉट पॉसिबल कि आप आगे तक जा पाओगे, क्योंकि वो पहला कदम उठाना पड़ेगा सर चलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पहला कदम ही जब नहीं उठा पाओगे तो आगे नहीं पहुंच पाओगे कभी भी जिंदगी में। और एक सर ऐसा रहता है कि खुद को ना ये होने लग जाता है, यार एक डाउनफॉल आता है सर, क्या होगा मेरे साथ, ये होगा कि, क्योंकि नेगेटिव आती हैं सर, नेगेटिव बातें दिमाग में। लाइफ का जो ग्राफ है ना, तो पढ़ाई में भी ऐसे ही है, वेदर इट इज फार्मेसी, हम कैप्स की बात कर रहे हैं, लाइफ में कुछ और भी है ना, तो आप ऑलवेज आप ऐसा मत सोचो कि भाई बहुत ही इजीली आपकी लाइफ में आप अचीव कर जाओगे हर कुछ, है ना? थोड़ा बहुत तो डाउनफॉल लाइफ में आएगा, पर यही पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव रहना पड़ेगा सर इस एग्जाम में। विदाउट पॉजिटिव नहीं रहेंगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है।
जरूरी है सर। और आपके जो मेंटर कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ो, जो उन्होंने जितना बता दिया उतना ही सफिशिएंट है सर एग्जाम के लिए। अगर आप कुछ दिमाग में ये कुछ रखते हो कि नहीं इससे कुछ बाहर आ जाएगा, वो रहने दो। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेशन जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उतना सफिशिएंट है सर। तो बिल्कुल देखो, एग्जाम में क्या होता है कि जो फार्मेसी है, यू स्टडी इन 4 ईयर बैचलर ऑफ फार्मेसी और 6 ईयर फार्मेसी और एम फार्म, अब हाउ वी कैन फिनिश दिस इन 3 मंथ, बिकॉज हमारा फोकस है आपको एग्जाम पास कराना। हम आपको फार्मेसी नहीं पढ़ा सकते 3 मंथ में, हमारा काम है आपको एग्जाम पास करना। एग्जाम में क्या आएगा वो हम पढ़ाएंगे, वही आपको पढ़ना है। और जैसे एंटायर एनएफ सिलेबस है, ये A to Z हम लोग कवर करते हैं, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट में हम लोगों ने कुछ ग्रांड टेस्ट भी थे, उनसे कुछ हेल्प मिला आपको? Sir, definitely. I told you, without a mock test, a time test, I'm not capable to clear the exam. Okay. तो अक्षय, I mean, at the end, what you want to say, जो लोग हम लोग को देख रहे हैं उनको मोटिवेशन के लिए, जो लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम देंगे पर उसे दिया नहीं, ज्वाइन नहीं किया है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उनके लिए एट द एंड? सर, यही कहना चाहूंगा कि जो जिसका कोई सपना है बड़ा, अगर वो अपने सपने के लिए कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको अचीव करने के लिए इतनी मेहनत कर दो कि लोग देखते रह जाए। Yes. This is not for you. अगर आपकी फैमिली, अगर आपने अक्षय ने आज एग्जाम पास किया, इनकी एंटायर फैमिली, मैं कहता हूँ उनके विलेज जहाँ से भी रहने वाले हैं, सब लोग इनको जानेंगे कहाँ ये लड़का ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। अदरवाइज ये अगर इंडिया में रहते, रिलायंस में रहते, तो क्या उखाड़ लेते। हजारों लोग, लाखों लोग इंडिया के अंदर ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो जॉब वहीं के वहीं है, कोई सैलरी बढ़ रही है, वो स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। तो आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो स्टेप लीजिए अपने, पॉजिटिव थिंकिंग साथ में, डेफिनेटली आप आगे जरूर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच अक्षय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।